Good morning to all of you. How are you all? I hope you all are good. My name is Megha Lava. I am a science teacher. So from today we start semester 2. So this is your first chapter of semester 2 book, Solids, Liquids and Gases. In this chapter we are going to learn about different forms of things. किस तरह से डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है एंड द फॉर्म्स आर सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ solids liquids and gases and how to convert things one form to another form. ओके इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है थिंग्स को एक स्टेज से दूसरे स्टेट में. ओके Years ago, in a small town in Egypt, change of forms. Water exists in three different forms. In the solid form as ice, in the liquid form as water, and in the gaseous form as water vapor. Water changes from one form into another on heating or cooling. Look at the ice cubes which are placed in the container. These remain solid at a lower temperature. On heating, the temperature increases and it changes its form. Look at the ice cubes now. It is changing into water. This process of conversion of ice into water is called melting. Observe the water vapor escaping out of the container. This process of conversion of water into water vapor is called evaporation. Observe the walls of the container now. Water droplets are seen on it when the temperature is reduced. This process of conversion of water vapor into water is called condensation. When water is cooled continuously for a long time, it changes into ice. This process of conversion of water into ice is called freezing. So students, open your book, chapter 1, solids, liquids and gases, page number 170. Let's get started. You have learned in earlier classes that water exists in three different forms. आपने पहले पढ़ा होगा वाटर जो है थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. कौन कौन से फॉर्म में? सॉलिड एज आइस, लिक्विड as in water and gases and water vapors. Look at the pictures given below and answer the questions. यहाँ पे हमें 3 images दी गई है, पिक्चर्स दी गई है, हमें इन्हें देखकर क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स देना है. फर्स्ट इमेज, व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ द कैटल. कैटल के माउथ से क्या बाहर आ रहा है? Second, what is the boy drinking? Boy क्या पी रहा है? In third image, question is what is the girl putting in the glass?
अब देख रहे हैं कि गर्ल जो है आइस ट्रे से आइस पुट कर रही है ग्लास में। सर पूछा गया है कि गर्ल जो है वो क्या पुट कर रही है ग्लास में। इनके आंसर्स आपको देने हैं। लाइक वाटर डिफरेंट थिंग्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज ए सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। वाटर की ही तरह डिफरेंट थिंग्स मीन्स अलग अलग चीज़ें डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। एंड वो फॉर्म्स क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Some things exist in solid form, some in liquid form and some in gaseous form. कुछ थिंग्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कुछ थिंग्स लिक्विड फॉर्म में एंड कुछ गैसेस फॉर्म में। बट हाउ डू वी नो इफ समथिंग इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस? बट हम कैसे जानेंगे कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में है? राइट, उनकी प्रॉपर्टीज के थ्रू। सॉलिड्स, लुक एट द पिक्चर गिवन अलोंग साइड। यहाँ पर हमें इमेज दी गई है स्टोन्स इनसाइड अ जार। यहाँ पे एक जार दिया गया है जिसके अंदर काफी सारे स्टोन्स है। ओके, जो आप ब्राउन कलर के देख रही है स्टोन्स मीन्स पत्थर है। डू दिस स्टोन्स ऑक्यूपाई स्पेस? क्या ये स्टोन्स जो है वो स्पेस ले रहे हैं मीन्स जगह ले रहे हैं? यस, दे ऑक्यूपाई स्पेस। यस, even if we keep the stones inside a bowl, their shape will not change. अगर हम इन स्टोन्स को जार के बाहर निकाल दें और इसे एक बॉल में डाल दें, ओके, अभी जार में अगर हम इन्हें बॉल में डाल दें, इनका शेप चेंज होगा? नहीं होगा। इनका शेप जो है स्टोन्स का एज इट इज रहेगा, मीन्स अभी जैसा है वैसा ही बॉल में भी रहेगा। राइट, things that have a fixed shape and size and occupy a fixed space are called solids. So solids की क्या properties है? Things, उनकी space, उनका जो shape होता है वो fixed होता है, size fixed होता है और fixed space वो occupy करते हैं। Means ऐसे things जिनका shape size चेंज नहीं होता है, अगर हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उन्हें पुट करते हैं उनका साइज चेंज नहीं होता है, ना ही शेप चेंज होता है, और उन्हें जो स्पेस लग रही है उतनी ही स्पेस उन्हें हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। सो उस फॉर्म को क्या कहेंगे? सॉलिड्स। ओके, पेज नंबर 171। Things like pencil, books, eraser are examples of solids. So solids के example क्या है? Books, pencil, eraser, sharpener, bag, stones, marbles and many other things जो अपना शेप साइज चेंज नहीं करते हैं। ओके, all things are in exist in solid form. What will happen if we place a pencil on the floor? अगर हम पेंसिल को एक फ्लोर पर मीन्स ज़मीन पर अगर रख देंगे, डज इट मूव बाय इटसेल्फ? क्या वो खुद से मूव करेगी अपने आप? नो, इट डजंट, वो अपने आप मूव नहीं कर सकती। सॉलिड थिंग्स डोंट मूव और फ्लो बाय देमसेल्व्स। सॉलिड थिंग्स जो है वो अपने आप फ्लो या मूव नहीं कर सकती है, हैंस दे कैन नॉट बी पोर्ड इनटू कंटेनर्स। ओके, सो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी है सॉलिड की? पहला, शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा किसी भी कंटेनर में हम उन्हें पुट कर दे, एंड वो जो स्पेस लेते हैं वो फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। एंड सेकेंड, एंड वो अपने आप मूव नहीं कर सकते, दे डोंट मूव और फ्लो बाय देमसेल्व्स। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टूड हो गया होगा।
So students, take care and be safe. Have a nice day.